بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غارِ حرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکے کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو حبیب اور زید کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے تانے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ لیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کان اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھری تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والے آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخوں نے بھی شام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کی اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 آپ مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا؟ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان 2 کو کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ یہ 6 تھے، اس شخص نے جواب دیا۔ ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی کے مقام پر پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہو گئے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کا نیام سے تلوار نکال لی، اور کیونکہ اسے ہم نے تنہا نہتہ کر رکھا تھا اسے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے، اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے تنزیہ کہا، محمد کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر رہے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کہا، کیا ان میں 100 آدمیوں نے اپنی ماں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ ولید کے بیٹے، اس آدمی نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھائے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چلے گی؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے، شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا۔ ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3-4 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی۔ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اندر
ऊपर बुन बनाती रही। इसे यूँ हवा याद आई वो जादूगरनी थी या नहीं। इसके हुस्न में, जिस्म की साख, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। इसने शारजा बिन मुकीस के इस आदमी के मुंह से यूँ हवा का नाम सुना तो वो चौंका। मार्का उहद के बाद जब अहले कुरैश की फ़ौज वापस मक्का आई थी तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अकरमा के पास आए थे जैसे उहद में यहूदियों की शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में इसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने इसे रोक दिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती, वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है, युहावा ने कहा और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी। वो बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने इसे घोड़े से ज़मीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके, युहावा ने कहा। तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूँ महसूस किया जैसे इसकी ज़बान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों, तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? युहावा ने कहा। औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जरी मर्द के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ ना सका। युहावा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद इसे देखता रहा। इस घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेज़ी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर इसने पीछे देखा। युहावा रुक कर इसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ ज़रा ऊपर करके लहराया। अब जबकि वो दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और इस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया था। इसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। इसे अपने कबीले का एक और सरकर्दा आदमी मिल गया। इससे इसे पता चला कि मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों के साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रौब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वह जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगरी से बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम ना किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने इन मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई इसमें यहूदियों ने कोई सफूफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबते दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका ज़रिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदियाँ नईम बरहना थीं। नाचते नाचते इनके जिस्मों पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सरक कर ज़मीन पर जा पड़े। यहूदी अपने जिंदे साथ लेके थे। अगले रोज़ जब शारजा बिन मुगीस की आँख खुली तो इसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। इसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदियाँ भी वहाँ मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। इसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और इसे खींच कर अपने पास बैठा लिया। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर इसे शिकस्त दी जाए, एक यहूदी ने कहा। हम मुसलमानों को दूसरे तरीक़ों से भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे, इनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन इसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया। अपनी एक खादमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला लाएं। युहावा इतनी जल्दी इसके पास आई जैसे वो इसके बुलावे के इंतज़ार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो। खालिद,
तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अक्ल की कमी है। दुश्मन को मारना है तलवार से मारो और इसे तीखी नज़रों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 वर्ष बाद वो जब सहरा में तनहा जा रहा था तो यह हवा की बातें उसे याद आ रही थी। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी इनके साथ थे, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ इनके अपने मफादात भी हैं। लेकिन अलबत्ता इसने ये तस्लीम कर लिया था कि यूं हवा अब जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का कोई असर ज़रूर है। खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। इसके जहन में फिर खुबैब बिन अदी और जैद बिन अलदसना आ गए। लोग इनकी बोलियां बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। आखिर सवार होगा और कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने की अवज़ खरीद लिया। ये दोनों आदमी इन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो उहद के मैदान में मारे गए थे। इन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सलार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। इन 2 मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि यह महीना जो गुजर रहा है मेरे देवता और अज़ा और हबल का मुक़द्दस महीना। यह महीना ख़त्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो इसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि वो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, आप क्या जानते हैं? मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें हैं। क्या आप अपने दुश्मन से यह कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खुबैब और जैद को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब के इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। और कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने की अवज़ खरीदा है। अगर तुम इन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ, इससे 2 गुना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गरजदार नस्वानी आवाज़ आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज़ थी। इसने गुस्से से लरजती हुई आवाज़ में कहा, हमजा का कलेजा चबा कर भी मुझे मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई है। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे लाकर रखोगे तो भी मैं इन 2 मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूँगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूँ बोलती तो मैं इसकी ज़बान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की ज़बान खींच सकते हो। हिंद की आवाज़ आई, तुम्हारा बाप नहीं मारा गया था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। आग जो मेरे सीने में जल रही है, तुम इसकी तपश से नाश ना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहाँ मर्दाना जलाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहाँ एक खामद की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है इसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज़ का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो इन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, इन 2 मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के 2 खंभों के साथ खुबैब और जैद बंदे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखना चलाना हवा जूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और बंद घोड़ों पर सवार हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी नारे पहले से ज़्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया और दोनों ने इसे कहा कि वो ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इन्हें इजाज़त दे दी। खालिद अब मदीना की तरफ जा रहा था। इसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज़ पढ़ने लगे। खालिद पर इस वक्त को जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद इसकी ज़ात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। हुबैब बिन अदी और जैद बिन दसना हजूम की चीखो पुकार से लातल्लुक़ अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हजूर रुकू और सुजूद में मखूद हैं। उन्होंने नहायत इत्मीनान से नमाज़ पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और ख़ुद ही लकड़ी के खंभों के पास जाकर पीठें लगाकर खड़े हो गए। वो बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज़ से खुबैब और जैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। अपनी ज़बानों से कह दो कि हम इस्लाम को तरक करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान कर दो और अपनी ज़िंदगियाँ मुझसे वापस ले लो।
अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ और ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ए बातिल के पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज़ गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं अज़ा और हबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इस एक अल्लाह के। अभी जारी है वीडियो, बाकी कल लेकर हाजिर होंगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।